ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ, ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ, ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕਦੋਂ ਦਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ, 10 भी हिर ले तो मूड़ा, कहो कहाँ करे की करेगा। जो 10 भी ना देंदा फिर तू दाता बन सकदा है। कमाल दी बात है, दात लैण वाला भखारी हुंदा, पर इत्थे दातां लै के अगां वंडण वाला अपने आप नूं दाता भखारी नहीं समझदा। दाता लैनी है तो उन्नी देर भखारी है, बाद विचों नाल दी नाल ऐ कह लीए भी कपड़े बदल जाता है, दशा बदल जाती, अवस्था बदल जाती है। मैं सीधी तरह समझावा, जिन्नी देर ते इधर नूं मूँह रहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब वल नूं, उन्नी देर ते हथ जुड़े रहिंदे ने भी मैं तेरे दर दा मंगता। ते जदों मूँह घुमा लेने उदों फिर सोचदे मैं ते राजा बन गया होना। तां ही पातशाह बाणी विच कहा, दात प्यारी विसरिया दा तारा। वो दाते ने दातां दित्तियां, तां ही बाणी दे विच इत्थों तक बचन कर दिते, दद्दा दाता एक है, सब को देवनहार देंदे तोट ना आवई। ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋਟ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ। ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਾਤਾ ਕਿਧਰੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। करी जा रहा, बख्शिशां करी जा रहा, एडियां रहमतां बरसा रहा है। पर पंक्ति ध्यान में रखियो, अर्थ की कर रहे हैं, दात खसम की पूरी हुई। पूरी कदों होएगी? उहदे लई आपां पहलां दातां वेख रहे हैं भी दाता दातां की दे रहे हैं।
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਢ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਿਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾੜਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਕੰਨ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਵੇਖਿਓ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸੂਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ਾਤ ਏ, ਭੈੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ, ਇਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਵਾਚਣਾ, ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਦਾਤ। ਆਹ ਪਕੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਦਾਤ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਤਾਂ ਗਿਣ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਦ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਦਾਤ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਦਾਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ, ਸੋਚੋ। ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ।
बाणी ते इत्थों तक बचन कर दिते पातशाह जी ने कि खावो खर्चो रल मिल भाई तोट ना आवे। फिर पूरी अधूरी किस तरह है? आ पॉइंट साडी पकड़ करने वाला है। बड़ा आनंददायक ये विषय भी दातां अजे अधूरियां ने, पूरियां कदों होणगियां। इहदे लई मैं एक दो बात करदा, हो सकदा गल तुहाडी पकड़ विच आ जाए, स्पष्ट हो जावे। मन लो मैं कोठी पाई है, मैं घर बनाया है, उदाहरण लग्या देन, पकड़ करियो इस गल दी। बड़ी पॉइंटड बात है, साडे कोल सानू पकड़ आएगी इस चीज़ की बहुत वधिया। मन लो मैं घर बनाया, मैं 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया कि करोड़ रुपया ला के कह लो मैं कोठी पाई, बड़ी आलीशान, यही वरतदे ना आप शब्द तकरीबन भी आलीशान वधिया घर बनाया है। मैं घर बनाया, सारे रिश्तेदारां नूं कार्ड वंड आया, सबना नूं सुनिया भी ला के आया मेरे घर जरूर आयो, पर जिहड़ी मां ने जन्म दिता मैं उन्होंने नहीं बुलाया। वो मेरे नाल नाराज है किसी गल तो, कह लो आपां तां वैसे उदाहरण बना रहे हैं। वो मेरे नाल किसी गल तो नाराज सी, मेरी माता मेरा पिता, मैं उन्होंने तो वखरा होके घर बना लिया, करोड़ा रुपये ला के कोठी पाती, बड़ा कुछ किया, सारे रिश्तेदारां नूं आप जा जा के, क्योंकि जिन्हें हुण करोड़ रुपया कोठी ते लाया उहदे कोल गड्डी भी वधिया होएगी, वधिया गड्डी उत्ते जाके फिर उन्हें कार्ड भी वधिया छपवाया होएगा, वधिया कार्ड भी वंडे होणगे। फिर जिहड़ा कार्ड वधिया वंड रहा वेखियो तुसीं, हुण ते रिवाज ज़्यादा चल पिया, फिर अगला नाल डब्बा भी दिंदा 200 250 300 का 400 का, ते अगला कहे भी मेरे घर अमीर बंदा आया। काम सारे कर ले पर अधूरा कित्थे वे? सारे रिश्तेदारां ने आके सवाल करना, वो तेरी मां पुछणगे ना अक्सर नूं। जेकर मैं अपने मामिਆਂ नूं नानके परिवार नूं कार्ड दे के आया, वो जदों ही मेरे घर आउणगे उन्हां दीआं अखां आउंदे सार अपनी भैन नूं लभणगीआं, साडी भैन कित्थे वे? क्योंकि मैं ते भाणजा उन्हां दा भैन करके आ ना, सिद्धा ते भाणजा नहीं आ। मेरे घर तो नानका परिवार आया ना, मेरा मामा आउंदे सार हुंदा अटैचमेंट हुंदी, आउंदे सार जदों ही घर दे विच प्रवेश करना पहलां आपां अपना रिश्तेदार लभदे। वेखो किड्डा भी विआह किड्डा भी मेला भरिया होवे ना, अधूरा लगदा उन्नी देर जिन्नी देर अपना जी नज़र ना आवे। कई बार रब ना करे कोई जीव परिवार विचों चला जावे ना, कई बंदिआं दे ते हंझू निकल आउंदे ने खुशी दे मौके उत्ते भी, क्यों? साडी भैन नहीं दिस रही, भैणां दे अंजू निकल आउंदे, साडा भरा नहीं नज़र आ रहा, चला गया संसार तो। उहदे ही जद के पुत्तर दा विआह हुंदा भैणां रो पैंदियां, नहीं साडा भरा हुंदा ते फिर की हुंदा। ते अज हुण खुशी दा समय, मान लो मेरे घर दे विच सारे रिश्तेदार आए ने, दोस्त मित्र आए ने, मेरा नानका परिवार है, दादका परिवार है, सारिआं ने पुछना वो तेरी मां, वो तेरा प्यो, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? लानते तेरे उत्ते, एडी कोठी पाली तू, इन्ना कुछ कर लिया, इन्ना कारोबार वधा लिया, इन्नियां वधिया गड्डियां, तू सानू वधिया कार्ड वधिया डब्बे दे आए हैं, पर जिन्हां ने तेनू जन्म दिता अजे जिउंदे ने उन्हां नू ते याद कर। मेरा ख्याल है गल स्पष्ट हो गई होएगी। एडी वड्डी कोठी पाई भी एकदम बेकार है, क्योंकि मां नू याद नहीं किया। ते हुण जिहड़े दाते ने दातां दित्तियां, मैं उदाहरण बनाई एक तुहानू स्पष्ट करन दे लई। हुण जदों दातां देण वाला दाता ही विसर गया, फिर किस लाभ दा? शरीर किहड़े काम दा? तां ही पातशाह जी ने बचन कीते ने, जिन दिन करके, जिन्ने दिन बना के कीती रात, फिर उन्हें रात भी किदे लिए बनाई? तेरे लिए बनाई है ना। कल ही आप शब्द पढ़ रहे सा, मारू राग दा धन गुरु नानक साहब पातशाह जी का उचारण किया होया शब्द,
अरबद नरबद धुंधु कारा, धरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा ते सुन विच समाधि पहले ला के बैठा होया सी। उन्होंने की लोड़ सी दिन रात की, उन्हें तो साडी खातर बनाए ने ना। उन्हें माँ बनाई अगों जनरेशन पैदा हो सके, पिता बनाया उन्हें नर मादे का मिलाप बनाया, उन्हें इन्ने रिश्ते नाते बनाए। उन्हें वेखो फिर साडियां अखां जुबान कन हथ पैर, भाई गुरदास जी कहते सब दात सो तिसै सारियां ते दातां ओहदियां, ते तू दातां लैके दाते नूं उन्हें बचन किते। भाई गुरदास जी ने कादर मनो विसारिया, सोच के वेखो क्यों विसारिया सी। हस्ते घर पा लिया, सारा कुछ कर लिया, तख्ती भी अपने नाम की ला ली, पर उस मालक नूं उन्होंने चेता ही नहीं किया जिन्हें दातां दित्तियां ने ना, जिन्हें एडी रहमत बरसाई, इन्नी कृपा की, रहमत की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिता, उन्होंने चेते विच ही नहीं लैके आंदा। फिर ये शरीर अधूरा है, फिर ये जुबान अधूरी है, फिर ये अखां नेत्र उन्नी देर अधूरे ने, फिर ये कन उन्नी देर अधूरे ने, ये हथ उन्नी देर अधूरे ने, पैर उन्नी देर अधूरे ने, कह लीए शरीर सारा ही उन्नी देर अधूरा है। घर बार धुप्पां छावां दिन रात सारा कुछ उन्नी देर अधूरा है जिन्नी देर करता चेते विच नहीं है। मिलिया कादे लई सी? सारा कुछ मिलिया करते दा नाम जपण दे लई। देखो ना अज भी तुसीं हुण ब्लैक बोर्ड दे उत्ते हुक्म पढ़ रहे होवोगे, पातशाह के बचन कीते ने, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तां तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तार नहारे, माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो धोरा, तेरा ही आसरा है सब थावां दे उत्ते। ते हुण ख्याल करो इन्हां पंक्तियां नूं दोबारा पढ़ो किधरे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, की अर्थ बनिया? माता दे गर्भ विच जिथे मां भी परवरिश नहीं सी ना कर सकती, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू ने रहमत करके बख्शिश करके सिमरन दे के। अज सोच रहे हैं सिमरन करना बड़ा औखा काम है, उत्थे सिमरन की वजह करके बचे। बाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा, बाणी का ये बचन है, बाणी विचों पातशाह बचन कर रहे हैं। उत्थे ते अकाल पुरख वाहिगुरू ने सिमरन दे के, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तां तुम राखण हारे, कह लगे तां दा अर्थ है उत्थे उत्थे तुसीं भी परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू अपना सिमरन दे के उत्थे तुसीं रखिया करन वाले सी ते तुसीं कीती भी। ते जीव ने की कीता? विचों गर्भै निकल आया खसम विसार, दुनी चित लाया, ऐसा दुनिया नूं चित ला लिया, सारियां चीज़ां अधूरियां कर लियां। पहला जिहड़ा मालक गर्भ विच जाद सी ना, भगत धन्ना जी भी बड़ा प्यारा बचन कर दिता है, जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में राखै ऐसा खसम हमारा। वो साडा ते खसम ऐदां दा है, अग विच भी रखिया कर सकदा, पर भोलिया तू ते बाहर इन्ना आनंद माणदा होया, इन्ने सुख माणदा होया उस दाते नूं भुला बैठे। हालांकि आपां हर रोज़ आनंद साहब पढ़ते हैं तो हर रोज़ इन्हां बचनां नूं जिन्हां गुरसिखां नूं बाणी याद ध्यान दिओ, इस पक्ष विच जिहड़े पढ़दे सुणदे हो, आपां हर रोज़ ये बचन पढ़दे हां, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। इशारा करके वेखो शरीर वाल नूं, जिन हर जिस हरि ने तेरा रचन रचिया सो हर, ओ परमात्मा मन ना वसाया तो उन्होंने मन विच ही नहीं वसाया।
फिर कादे लिए आया धरती ते? होगी ना दात अधूरी, अपने आप अधूरी उन्हें नहीं दिती। आपां कहिए भी उस करते ने अधूरी दिती, अधूरियां दातां दे रहा, नहीं, वो आप पूरा दातां भी पूरियां वंड रहे है। उन्हें ते ख्याल करके वेखो, माता दे गर्भ दे अंदर जीव दा निर्माण किया, सिमरन नाल दिता, उन्हें सिमरन नाल दिता। सिमरन किन्ने भुलाया? असी। दात असी अधूरी बनाई, पिता ने नहीं, खसम ने नहीं अधूरी दिती, उन्हें ते रहमत कर दी, बड़ी वड्डी बख्शिश कर दी उन्हें ते। ये असी भुलेखे दे विच अजे तक फिर मंगी जा रहे हैं, सानू होर सुख दे, होर दातां दे सानू, क्यों होर भुला सकीए? नहीं भुलियो, असी जिथे ठीक है साडियां संसारी लोड़ां ने असी दातां मंगणी है, ऐसी गल नहीं। माया दा त्यागी नहीं क्या बाणी दे विच किधरे ने भी कपड़ा त्याग दो, सारा कुछ माया नूं हथ भी नहीं लाना, ऐसा नहीं क्या। जोगमत नहीं बनाया किधरे भी गुरु नानक ने, ना बनाया ना अपनाया। विचे गृहस्थ उदास कहा बाणी दे विच, तू मां कोल भी रहना, तू पत्नी कोल भी रहना, तू बच्चों कोल भी रहना। हाँ, उन्हां दे विच विचरदिआं अठे पैर उस करते नूं नहीं भुलाना। करता भुल गया ते भावें तू पहाड़ ते बैठा ते भावें तू परिवार विच बैठा, दोवें थावां तेरियां बेकार ने। हुण उत्थे वो सिमरन करदिआं हंकारी है, घर दे विच परिवार दे विच कामकार करदिआं हंकारी, हंकार ते दोवां दे कोल है, दोवें इको खूह विच डुब्बण वाले ने। करना की है? करते नूं चेते विच वसाना, भुलाना नहीं कदे भी। इस वास्ते जदों करता चेते विच आ गया ना, मन दे विच वस गया, फिर यही शरीर जिहड़ा कल आपां अर्थ कीते सन, अबचल नगर गोबिंद गुरु का। फिर ये शरीर जिहड़ा ये हुण मेरा घर नहीं रहा, ये हुण गुरु दा घर, क्योंकि अंदर गुरु दी बात काम कर रही है शरीर विच। ते गुरु किहदी बात करा रहे हैं? गोबिंद दी। गुरु भी अपनी बात नहीं करा रहा भी तू मेरे पैरां ते मत्था टेक, हुण मेरे तू चरण धोई जा, नहीं। गुरु कहंदा करते दे नाल जुड़, तू करते नूं मन विच वसा, तू आपे गोपाल चेते आउण लग गया, गोबिंद चेते आउण लग गया। तां करके फिर क्या होया कि ये शरीर जिहड़ा हुण इहदे अंदर वो नाम आ वसिया जिहड़ा सदा अटल है, सदा सच्चा, कदे डोलदा नहीं। हुण ये शरीर जिहड़ा ये उस करते दी दात नज़र आ रहा है। ये शरीर अबचल नगर बन चुके है। हुण पढ़ो इस पदे नूं, होर ज़्यादा आनंद बजेगा। इस दे विच पातशाह बचन करते ने, दात खसम की पूरी होई। पहला शरीर अधूरा सी, जदों गुरु ने ज्ञान दे के इनू नाम जपन लाता, परमेश्वर दे गुण गान लाता, हुण ये दात पूरी हो गई, इहदा जीवन मनोरथ पूरा हो गया। क्योंकि आया कादे लई सी? आयो पढ़न सुनन को बाणी। आया कादे लई सी? आया सी गोबिंद नूं मिलन दी, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरीआ। हुण वो दात पूरी हो गई। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़ै सवाई। हुण नितां प्रति सवाई दा अर्थ की हुंदा है? ये पुराना शब्द है। सवाई दा अर्थ हुंदा है एक पा के उहदा 15% पाइया फिर उत्ते पाना, सवा भाव, सवाई ज्यादा। कह लगे नित नित चढ़ै सवाई। हुण नितां प्रति दून सवाई हो रही है, भाव वधदी जा रही है। नितां प्रति नाम दे विच रुचि वध रही है, नाम दा अंदर वासा हो रहा है, नितां प्रति उहदा आनंद आ रहा। हुण फिर अगली पंक्ति, पार ब्रह्म खसमाना किया। खसमाना दा अर्थ खसम वाला काम। बहुते बंदे करते नहीं, खसम बनना बड़ा सौखा लगता है सानू, पर खसम वाला काम करना बड़ा औखा है। खसम जिम्मेवार हुंदा है। जिम्मेवारियां तो भज्जण वाले दा नाम नहीं खसम। दुनियावी तौर दे उत्ते हुंदा ना, पति नूं भी खसम किया जाता है। इत्थे भी पातशाह शब्द वरते
पार ब्रह्म अकाल पुरख परमात्मा ने खसमाना किया, उन्हें खसम वाला रोल अदा किया है, जिस दी वड्डी वडियाई राम, जिहदी वडियाई बहुत वड्डी है, जिहदियां रहमतां बहुत वड्डियां, जिहदियां बख्शिशां बहुत वड्डियां, उहदी वड्डी वडियाई है, तादी ते उन्हें वड्डा काम कीता है। उन्हें दातां दित्तियां, नाल नाम दी दात भी दित्ती, गुरु अगवाई देण दे लई भी दित्ता, सानू ज्ञान दिता, बख्शिशां कीतियां। जिथे दुनियावी दाता बख्शदा उत्थे नाल नाल गुरु ज्ञान भी सानू दिता होया, पर असी दाता नाल जुड़ गए, ज्ञान गुरु नूं असी भुल गए। अगली पंक्ति वेखो फिर, आद जुगाद भगतन का राखा। आद दा अर्थ आरंभ, स्टार्टिंग, जुगाद दा अर्थ जपजी साहिब विच आपां दोवें शब्द पढ़ लैंदे आ, आद सच जुगाद सच। आद दा अर्थ आरंभ, जदों धरती का आरंभ होया सी, कह लईए जदों ब्रह्मंड का सृष्टि का आरंभ होया सी उदों भी। जुगाद का अर्थ पुरातन समय तो बहुता जुगां की बात की जाती है, इस दे लई पातशाह उन्होंने भी झुठला नहीं रहे, बचन कर दिता जुगाद। जुग आद दो शब्दां तो बनिया जुगाद। जुग कन्ना जिहड़ा उन्हें ऐड़े का रूप लै जाना, जुगाद। जुगां दा आद, जिथों जुगां दा आरंभ होया, भगतन का राखा। आद जुगाद दा अर्थ है सदा ही, आरंभ तो लैके जदों सृष्टि का आरंभ होया उदों तो लैके सदा ही भगतन का राखा, जिहड़े उहदी भगती करदे ने उन्हां दी रखिया करदा वाहिगुरू, उन्हां ते रहमत करदा, बख्शिश करदा। सो प्रभ भया दयाला। सो दा अर्थ है ओ प्रभु हमेशा ही दयालता दे अंदर रहिंदा, कृपा करदा, रहमत करदा, बख्शिशां करदा। ते अगली पंक्ति ये कहन लगे, जी जंत सब सुखी वसाए। प्रभ आपे कर प्रतिपाला। प्रभु जी आप ही सबना दी प्रतिपालना करके सारे जी जंत सब सुखी वसाए, सारियां नूं सुखी वसा रहे है। रहमत दे घर विच आके सारे जीव जंतुआं नूं खाण नूं दे रहा, पाण नूं दे रहा, जिवें दियां किसे दियां लोड़ है उवें दी उन्हें खुराक पैदा कीती होई। सानूं अन्नदाणे दी लोड़ है, साडे लई अन्नदाणा दिता दरख्तां नूं, उन्हां नूं हुण अन्नदाणे दी लोड़ नहीं है। वेखो उन्हां दा भोजन खाण दा रस्ता किधर नूं बनाया, जड़ां ताणी। वो जड़ां तो साइंस ने कहा ना कि क्लोरोफिल खांदे ने, लैंदे ने, उहदे नाल उन्हां दा शरीर हरा रहिंदा, पत्ते हरे रहिंदे ने। वेखो पैरां वाले पासों भोजन छक रहे ने, किड्डे कमाल दी बात है। मनुख दो पैरां उत्ते तुर रिहा ते पशु सारे आपां कहने ना चार पैरां वाले ने, कमाल दी बात है। हुण दो हत्थ उन्हां नूं एक्सट्रा भी दे सकदा सी, पर उहदी बख्शिश है, उन्हें जिवें दी बनतर बनाई है ना, उन्हां दा खाना पाना दाना सब उस तरीके का बनाता। हुण मच्छी जिहड़ी पानी विच रहिंदी है, पानी विच ही उहदा खाना है, पानी विच ही साह लैंदी है। हुण पानी दे विच ख्याल करके वेखो, पानी दे विच ओह साह किवें लै सकदी है। कमाल दी बनतर है वाहिगुरू दी। सोचण वाला बातां ने साडे कोल बहुत सारियां। इस दे लई पातशाह इत्थे बचन कर रहे ने, जी जंत सब सुखी वसाए, सारियां नूं सुख दे रहा है, हसदे खेडदे सारियां नूं वसा रहा, प्रतिपालना कर रहा सबनां दी। वखरी बात है भी असीं जीव जिहड़े आ उस दाते नूं भुल्ली फिरदे आ। फिर बचन कीते, दह दिस पूर रहिया जस स्वामी, कीमत कहण ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अबचल नीम रखाई, दह दिश पूर रहिया जस स्वामी। हुण जदों नाम दे नाल जुड़ गया ना, हुण समझ आई उहदा ते जस दसां दिशावां दे विच पूरिया होया है, क्योंकि रहिंदा सारे पासे वे, ते जिथे रहिंदा उत्थे ही उहदा जस है, किसे ना किसे रूप विच हो रहा है। कोई कुदरत कह के मन रहा है, कोई रब कह के मन रहा है, कोई साइंस कह के मन रहा, चल तो उस अकाल पुरख करता पुरख दियां दातां रहियां ने ना सब पासे। दह दिश दा अर्थ है 10 दिशावां।
चार दिशावां उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, फिर उन्हां दे चार कोने बन गए, फिर उपर नूं ते नीचे नूं टोटल 10 दिशावां बन गईयां। पूर रहिया जस स्वामी, सारे पासे उहदा जस जिहड़ा पसरिया होया पूरिया होया। कहण लगे कीमत कहण ना जाई, उहदी कीमत नहीं दसी जा सकती। सब कीमत मिल कीमत पाई, पहला आपां पंक्ति पढ़ लीए। कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई, इत्थे भी कह रहे ने कीमत कहण ना जाई। कहो नानक, हे नानक तू कह सतगुर बलिहारी, मैं अपने गुरु तो बलिहार ने, सच्चे गुरु तो बलिहार ने जाना। हुण वेखो जे एडा ज्ञान गुरु ना दवे तो असीं ते अधूरे ही आ ना अजे तक। इस दे लई कह रहे ने सतगुर बलिहारी, जिन अबचल नीम रखाई, जिन्हें मेरे अंदर अहिल ना डोलन वाली नींह रख दी नाम दी, कि भोलिया नाम जपिया कर, नाम तेरे नाल निभना। इत्थे भी उत्थे भी सब जगह उत्ते नाम ने सहायता करनी है तेरी। जेड़े काम अजे अधूरे सन, जिहदे करके मेरा शरीर अधूरा सी, अखां अधूरियां सन, जीभ अधूरी सी, वो परमात्मा हुण अंदर आण वसिया। हुण सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां। दात खसम की पूरी हुई तो बात आपां आरंभ कीती सी, वो पंक्ति ध्यान दे विच रखियो। जिस अंदर आण वसिया ते सारियां दातां पूरियां हो गईयां, हुण शरीर पूरा हो गया, अखां पूरियां, जुबान पूरी है, क्योंकि परमात्मा दा नाम जप रही है। उन्नी देर दात अधूरी सी जिन्नी देर दाते नूं चेता नहीं सी कर रही। हुण दात पूरी हो गई, क्योंकि दाता अठे पैर मन विच वसिया होया है। ये पातशाह सानू हुक्म दे रहे ने, बचन समझा रहे ने कि भाई उस परमात्मा दा नाम जपो इस शरीर दे नाल। ये पातशाह जी ने समूचले सारे शब्द विच, जेड़े कल भी दो पदे वाचे उन्हां विच भी, जेड़े अज दो पदे वाचे उन्हां विच भी यही सानू फरमान दिता है, हुक्म कर रहे ने कि भाई इस शरीर दे नाल नाम जपो, तां ये शरीर जेड़ा सफला होवेगा, तां ये सच्चा किला बनेगा। एक सच्चा शरीर, एक सच्ची दात रब दी होएगी, जेकर इहदे नाल उस सच्चे वाहिगुरू परमात्मा नूं असीं याद करदे हां, तां साडा इत्थे लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो सकेगा, जे वाहिगुरू नूं गुरु दी संगत विच बैठ के याद करांगे। इन्ने बचन प्रवान करियो। दस खिमा मंगदा। आओ सारी संगत खिमा दी दात झोली विच पाउंदे होए गज के गुरफतेह दी सांझ करो, अख ना करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।